हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Start. The petitioner companies have filed compliance affidavit wide diary number 2181/2019 dated 4/10/2019 along with copies of the newspaper publications and copies of proof of service of notice to the statutory authorities full stop. The petitioner companies have also filed affidavit wide diary number 2232/2021 dated 11/10/2019 through their authorized signatory, wherein it has been stated that the value of assets and turnover of the combined entity is much less than the threshold limit as specified under Section 5 of the Competition Act 2002, read with relevant notifications. Therefore, the proposed scheme is not covered under Section 5 of the Competition Act 2005 full stop para. On perusal of the record, it is found that the Department of Income Tax has filed the report for transferee company, transferor company number 2 and transferor company number 3 wide diary number 81/2021 dated 23/2/2021, 502/2021, 503/2021 dated 6/1/2021 respectively full stop. It is stated in the said reports that there is outstanding demand of rupees 37,16,505 against the petitioner company number 4/transferee company, and the respective office has no objection if the company pays outstanding demand full stop. In respect of transferor company number 2 and 3, it is stated in the certificate filed that the office has no objection to the scheme if the tribunal secures the interest of the revenue to the extent that if any demand arises, then the company may pay the demand as and when it arises full stop. It is seen that Income Tax Department has not chosen to file any report in respect of transferor company number 1 till date full stop. In the circumstances, the right of Income Tax Department to file its report was forfeited. Wide order of the tribunal dated 23/3/2021 full stop para. The Regional Director, Northwestern Region MCA, to whom notice was issued, has filed its observations on 22/1/2020 before this tribunal, and upon perusal of the same, it is observed that the regional director has made following observations: para. The petitioner companies be directed to undertake the compliance of Section 232 in bracket 3 bracket out in bracket a bracket out of the Companies Act 2013 and pay the fees accordingly full stop para. The petitioner companies be directed to amend the scheme with addition of a separate clause / subclause for fractional entitlements, if any, for the equity shareholders of the transferor companies full stop para. The petitioner companies be directed to pay amount of legal fees / cost to the central government which may be considered appropriate by this honorable NCLT full stop para.
The regional director has no other observations slash submissions accepted as stated above in respect of consideration of the scheme of amalgamation of the petitioner companies may be considered on merits. Full stop. Over. तो फ्रेंड्स ये हो चुका है लगभग 105 की 105 प्लस की स्पीड का डिक्टेशन है ये, ठीक है, 105 से ज़्यादा की स्पीड है इसकी। एनसीएलटी का मैटर है ये, और असल में क्या है, थोड़ा मैटर की कमी है, इस वजह से जो है हम जो कल मैटर दिया था उसके आगे का मैटर है, तो आप लोग ईमानदारी करना, आप लोग उसके आगे के मैटर को लगाइएगा मत, ठीक है। आप बस इसको, कंपनी के मैटर बहुत इजी होते हैं, ठीक है। एक तरीके से वो ना सिविल होता है ना क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल तो कैसे भी नहीं हो सकता है, लेकिन सिविल भी नहीं होता है, वो बहुत इजी होता है, उसमें नाम नहीं आते हैं, एनसीएलटी में नाम नहीं आते हैं, ट्रांसफ़र ट्रांसफरी और कुछ कॉमन नेम्स हैं वही सब आते हैं, ठीक है। और एनसीएलटी के बारे में हम थोड़ा आपको परिचय दे देते हैं इसका। एनसीएलटी के एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, ये प्रॉपर अलग अलग जगह के अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, और इसके जो फॉर्म्स होते हैं ये हमेशा नहीं निकलते हैं, लेकिन हाँ साल 2 साल में निकलते हैं, ठीक है। जैसे अभी निकला था पिछले साल शायद 2019 या 18 में निकला हुआ था, ठीक है। तो उसके एग्ज़ाम्स अब धीरे धीरे हर जगह के अलग अलग होते हैं। एनसीएलटी का जब आएगा तो हम उसकी एक वीडियो प्रॉपर बना देंगे कि जब एनसीएलटी का एग्ज़ाम, मतलब जब इसके अगली नोटिफिकेशन आती है रिक्रूटमेंट की, तो इसमें 2 पोस्ट निकलती है, एक पीएस की और एक स्टेनोग्राफर की। पीएस की सैलरी होती है 50,000 रुपये, इसके अलावा कोई अलाउंस नहीं होते, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है। और स्टेनोग्राफ मतलब एनसीएलटी टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है, लेकिन एनसीएलटी से किसी को निकाला नहीं जाता है, ठीक है। ये एक तरीके का भ्रम फैलाया जाता है लोगों के ज़रिए कि उसको निकाल देते हैं, निकालता कोई नहीं है। और कैट ने भी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो एक बॉडी है, गवर्निंग बॉडी जो सारे ट्रिब्यूनल्स को गवर्न करती है, उसने भी ऑर्डर निकाला हुआ है, किसी ऑर्डर मतलब किसी केस के ऊपर ये ऑर्डर निकाला है कि जब तक आप रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं निकालते हो तब तक आप कॉन्ट्रैक्चुअल बंदों को नहीं हटाओगे। मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल बंदों को हटाकर आप दोबारा किसी को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नहीं रख सकते हो, ठीक है। ये जजमेंट उन्होंने दी है, तो ये फॉलो करेंगे लगभग सभी लोग, और ये एक्सटेंड होती है, ठीक है। इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है तो हमको ये निकाल देंगे, कोई निकालता नहीं है। इतनी कमी है स्टेनोग्राफर की कि कोई भी नहीं निकालता है, ठीक है। हमने गुड़गांव में जॉब करके छोड़ा हुआ था, वो वहाँ पकड़ पकड़ के रोक रहे थे कि भैया छोड़ के मत जाओ, करो, हम किसी मतलब ठीक ठाक जगह पे लगा देते हैं जहाँ पे आप सहूलियत से काम कर सकते हो। तो ऐसा होता है, मतलब स्टेनोग्राफर की बहुत डिमांड है और बहुत कमी भी होती है, इसीलिए परेशान मत होइए कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी वगैरह नहीं आती है, या कुछ 50 वैकेंसी आती है, आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। अपने मेहनत में लगे रहिए, सब कुछ होगा। स्टेनोग्राफर कभी खाली नहीं बैठता है, और ना ही वो बिना जॉब के रहता है, बस तब तक बिना जॉब के रहता है जब तक कि बस उसकी मेहनत सही दिशा में और एकदम एक्यूरेट, मतलब जैसे दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है ना, वैसे ही स्टेनोग्राफर की वैकेंसी में भी किसी ना किसी का नाम किसी ना किसी टाइम पे लिखा होता है, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, एनसीएलटी की बहुत अच्छी जॉब है, पार्ट टाइम करने के लिए बहुत अच्छी है, बेस्ट है। जब भी इसकी वैकेंसी निकलेगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे इसके बारे में। और स्टेनोग्राफर की सैलरी जो उसकी पोस्ट होती है उसकी सैलरी 45,000 रुपये है, ठीक है। हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा सैलरी एनसीएलटी ही देता है, ठीक। तो ये था एनसीएलटी के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको, ठीक। और हमने भी एनसीएलटी के काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, और लगभग दिल्ली छोड़ के सारे एनसीएलटी के एग्ज़ाम्स हमारे निकले हैं, मतलब स्किल टेस्ट हम पास कर चुके हैं। इंटरव्यू में अब उनको कुछ समझ में आया नहीं आया वो बात अलग है, ठीक है। और अहमदाबाद में हमारी पोस्टिंग भी हो चुकी है एज ए पीएस। तो क्या कहते हैं कि कुल मिला के कहना हम ये चाहते हैं कि एनसीएलटी का एग्ज़ाम बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती इसके लिए, ठीक है। आप बस तैयारी करते रहो, और जब पेपर निकले तो दे दो। अभी फ़िलहाल 7 और 8 जनवरी को मुंबई के एनसीएलटी का एग्ज़ाम है, ठीक है। और क्या कहते हैं इसलिए हम उसकी डिक्टेशन डाल रहे हैं। तो अभी कोई नई वैकेंसी इसकी नहीं आई है, जब वैकेंसी आएगी तो हम आपको बता देंगे, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, क्योंकि बहुत इजी मैटर है, सारी आउटलाइंस आपको पता है, आप हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो कमेंट करिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और फैलाइएगा, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए उसको जितना ज़्यादा हो सकता है, कम से कम अप्रिशिएट तो कीजिए कमेंट के साथ साथ, ये भी एक अप्रिसिएशन का ज़रिया होता है, लाइक शेयर कमेंट और प्लस सब्सक्रिप्शन। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले डिक्टेशन में, ओके।